So, students, today again I'm going to give you some code, and in this, since we have installed our node successfully and VS Code successfully, so what can we do, students? We can make any folder uh, on our desktop, so we can make our folder anywhere. I I am so sorry. I am making a new folder. Hmm? What will you do? You will just go to the new. What will you do? Hmm? If anywhere you want to make a new folder, suppose on the desktop you want to make a new folder. So what will you do? You will right click. You will go to the new. You will make new folder. Here I am making a new folder, naming it as class 10th. Okay, enter. So it will be pretty good to make it here. So after making a folder, what will you do? You will go inside the folder. So I will click to the folder and will go inside the folder. And if I will right click, hmm, I have come to the folder. Inside the folder, I have come inside the folder. Now what will I do? I will right click. I will go to the more option. Here automatically a option will come which will say to you that open with code. Automatically this option will be shown to you if you have checked the check boxes which I have told to you while was you installing your VS Code. जब आपको मैंने VS Code इंस्टॉल करने को कहा था, तो आपको कहा था कि मैंने चेक बॉक्सेस को चेक कर लीजिएगा. अगर आपने वो चेक किया होगा तो इफ़ यू विल डू राइट क्लिक, विल गो टू द मोर ऑप्शन. हेयर द ऑप्शन ऑटोमेटिकली विल कम which will say to you to go with open with code. Okay, so if you will click to that, this folder will get opened in the VS Code. What is VS Code? Visual Studio Code. Look at this, student. Your class 10th folder is here. You have made your class 10th folder on the desktop. What have you done? You had gone inside that folder, just double click to that, and what had you done? You had right clicked and gone to the uh, open with code. When you will click this will get opened in the VS Code. This folder will get opened in the VS Code. Now suppose if you are not finding the option of open with code, so what can you do? uh, what can you do? You can go to your folder. This is the class 10th folder. Okay, so class 10th folder, and inside this class 10th folder, go to this menu bar. uh, this menu bar, whatever, just go to this. When you will open the folder, here in the menu bar, whatever will be the name of the folder will come. I have named my folder class 10, so that's why here the class 10th is coming. So just click to that menu bar. Whatever is written there, just delete that and type CMD. If you will type CMD, the CMD, this folder will get opened in the CMD. You are looking that the user is received on the drive desktop, a folder is there class 10th. So if you are not finding the option of open with code, what can you do? You can go to your folder. You can go inside your folder and just go to the top of the menu, top menu bar. Click that, whatever is written there, just erase that and just write CMD. It will get, this folder will get opened on that CMD. And just here write code space dot and enter it.
So it is the another way of opening a folder in a VS Code. If you are not finding the option by writing right click, what can you do? You can go to the top menu bar, just write CMD there, and just enter the right type CMD and enter that. You will that folder will get opened on that CMD. And then after on that CMD, what will you do? You will just type code space dot and enter. This folder will get opened in the VS Code. Okay, students. So this is the two way, I think. If you are facing problem, you can ask to me. So give me some moment. After that, I'm no telling to you as some message I have found. Okay, okay. Okay, leave it. So um, I was telling to how to open the folder in the VS Code. Okay, students. So there were two ways I have discussed. You can go through the. You can go back. You can go backward and can do the things. So here in the VS Code, what is VS Code? It is Visual Studio Code. So your class 10th folder, are you looking? This class 10th folder is opened in this VS Code. Okay, this is what Visual Studio Code. You are looking that your folder class 10th is coming here. It is welcoming me. Huh? Okay, I don't want it. So in this class 10th folder, student, look, one more thing I wanted to tell to you. आप लोग गलती क्या करेंगे? आप लोग गलती ये करेंगे, आप CMD ओपन करेंगे, विंडो R ओपन करेंगे, यहाँ CMD, यहाँ से CMD जाएंगे और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिख देंगे. हाँ, CMD ओपन करके आप कोड डॉट लिख देंगे और सोचेंगे कि अब हम शुरू हो सकते हैं. भाई मेरे पूरे डेस्कटॉप की फाइल यहाँ पे आ जाएगी, पूरा कोड डेस्कटॉप का यहाँ पे वो ओपन कर देगा. तो मैं डेस्कटॉप को थोड़ी कोड में ओपन करना चाहता हूँ. आप डायरेक्ट अगर जाएंगे, आपने आपको मैं जैसे आपने मैं आप अगर डायरेक्ट CMD पे कैसे जाते हैं? विंडो R, वहाँ पे क्या करते हैं? CMD टाइप करते हैं, एंटर करते हैं. तो देखिए मेरा डेस्कटॉप ओपन हो गया है. अब यहाँ पे कोई फोल्डर थोड़ी है कि मैं फोल्डर को कोड में ओपन कर रहा हूँ. अगर यहाँ पे आपने कोड स्पेस डॉट एंटर किया तो पूरा डेस्कटॉप का जो भी आपका फाइल्स कोड है वो आप ज़िंदगी भर समझते रहिएगा. हाँ, वो ओपन हो जाएगा. सो नो वन विल डू लाइक इट. What will they do? They will first make a folder. I have made the folder class 10. We'll go inside it, okay, and on the top menu bar I will type CMD here and will enter here, and this folder will get now. If you are opening a folder and on that menu if you are typing CMD, so that folder will get opened on that CMD. Okay, here you will type code space dot enter. So this folder will get opened. So many times I have told to you, I have opened it twicely. So CMD, CMD, CMD. Okay. Okay. Just a moment. I have got stuck here. Okay. So look that your class 10th folder is opened in the code. It is welcoming. Just cross that. So look the structure of your folder. Here is the class 10th folder. Here is what? New file. Here is what? New folder. After that there are other options, refresh, all these things. Only you will play with new file and new folder. So just remember this new file and new folder. So if I am hitting it now,
it will, the option of the class 10th folder will not come until you are not keeping your, you are not hovering that your folder. Look that if when I will hover it, then it will show the option. If I will not hover it, it is not going to show the option. So if I will come here, huh, I will, if I will hover here, then the option will come. I will go to the new file. Okay, so let me give some time before I want to change my font. Okay, so that it should be clearly visible to you. Font size I want to check. I want to change. I am making it 24 will be okay. Okay. Okay, so what will I do? I will go to the new file. Will click to that new file. When I will click to the new file, uh, option will come where we will write the name of our new page. The name of new page, new file, sorry, not new page, new file. So when you will go to the new file, the click to the new file, the option will come. What do you want to make, what do you want to name your new file? You can name it with anyone. You can name whatever do you want to name it, you can name. I'm giving it the name index. So whatever name you will give, after that you will type dot html. Look this. So whatever name you will give, you, after that you will type dot html. So I have given the name, I have written the dot html. I will just enter it, and here a new file will बन जाएगा. New file will make up, and in this, and this will be a file of your this HTML file. This will be a kind of HTML file, or you can say this will be a kind of page which will be a HTML page. What is HTML page? Web page. So inside your class 10th folder, in the code, after opening the folder in the code, in the code you have made the new file. आपने कोड के अंदर एक नया फाइल बनाया index.html जो आपको दिख रहा है. अब ध्यान से देखो, आप अपने क्लास 10th वाले फोल्डर पे जाओ. ठीक है, मैं क्लास 10th वाले फोल्डर पे गया. ध्यान दीजिएगा, पहले क्लास 10th के फोल्डर पे मैंने कुछ भी नहीं बनाया था. क्लास 10th के फोल्डर को केवल कोड में ओपन किया था. तो फोल्डर के अंदर जाओगे तो देखो यहाँ इंडेक्स के नाम से एक HTML पेज, वेब पेज बन गया. बन गया कि नहीं? तो आपने तो कोड में छिड़कानी किया है, आपने तो कोड में फोल्डर बनाया है. वो कैसे? डेस्कटॉप के फोल्डर पे बन गया. तो ये देखिए, आपका जो फोल्डर है VS कोड से कनेक्ट हो गया. जो कुछ भी आप कोड में करेंगे वही फोल्डर में हो जाएगा. एक शॉर्टकट है, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लामेटरी मार्क आएगा. फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे एक्सक्लामेटरी मार्क आएगा. तो आप करिए, शिफ्ट 1 प्रेस करने के बाद एंटर कर दीजिएगा. तो शिफ्ट 1 प्रेस करके एंटर करेंगे तो आपको एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगी HTML की बॉयलर प्लेट मिल जाएगी. तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आपको बॉयलर प्लेट मिल गई. टाइटल आप देना चाहते हैं, टाइटल कुछ भी दे दीजिए. इसमें दे दीजिए क्लास 10th HTML tutorial. Okay, I am giving this title to this page. तो आप लोग अपने फोल्डर में जाइए,
क्लास 10 के फोल्डर में अपने वेब पेज को ओपन करिए। ये इंडेक्स वाला वेब पेज बन गया है, वो फोल्डर के अंदर ही होगा, उसको ओपन करिए। मैंने कई टैब्स खोले हुए हैं, वो मैं अपना काम कर रहा था। तो देखिए आपको अपना वाला जो HTML का आपने वेब पेज बनाया है वो यहाँ पे लास्ट वाले टैब में जो भी टाइटल दिया था क्लास 10 HTML ट्यूटोरियल वो आ गया। यहाँ तक करिए, अभी मैं 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी के आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने देख लिया है। यहाँ तक आप तो कैसे टाइटल देके टैब में जो भी टाइटल देंगे वो दिख जाता है। आई होप कि ये तो आपको आता होगा। मैं अपने कोड पे वापस जाता हूँ। तो मैंने टाइटल दे दिया। नाउ वट एवर कोड, वट एवर आई वॉन्ट टू मेक चेंजेस इन माई वेब पेज, HTML पेज, वट एवर चेंजेस I want to make, that changes I can make by writing the code inside the body. बॉडी के अंदर ही हम कोड लिखेंगे, तभी वेब पेज पे चेंजेस होगा। हम टाइटल यहाँ पे जो लिखेंगे वो टैब में दिखेगा। बॉडी के अंदर हम कोड जो लिखेंगे उसी से वेब पेज पे चेंज होता है। HTML आपके वेब पेज का एक स्केलेटन है। आप स्केलेटन कैसे बनाएंगे? HTML से बनाएंगे। तो सपोज आपने दिया, आप एक हेडिंग देना चाहते हो, तो हेडिंग देने के लिए पहले आप एंगल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। तो एंगल ब्रैकेट आपने टैग ओपन कर दिया और टैग को क्लोज भी करेंगे आप, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं H1 टैग लेता हूँ। कौन सा टैग? H1 टैग। H1 टैग हेडिंग फर्स्ट के लिए होता है। तो H1 टैग को मैंने ओपन किया तो उसको क्लोज भी करना होगा। तो मैं फॉरवर्ड स्लैश करूँगा और इसको क्लोज भी कर दूँगा। देखिए, तो मैंने क्या किया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बॉडी के अंदर मैंने H1 टैग लिया, ठीक। H1 टैग ओपन किया तो H1 टैग को क्लोज भी करना होगा। अब इस टैग के बीच में हम कुछ भी लिखें, H1 टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे शो होने लगेगा। H1 टैग में दिया मैंने जैसे वेलकम टू दी क्लास, वेलकम टू दी क्लास, ओके। और कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने। तो मैंने H1 हेडिंग दे दी। अब इसको तो H1 हेडिंग दे दी तो हमारा ब्राउज़र पे हमारे जो हमने इंडेक्स का पेज बनाया था उस पर भी आना चाहिए वेलकम टू दी क्लास। तो आप जाइए, देखिए अपने क्लास 10 के फोल्डर को ओपन करिए। देखिए आ गया वेलकम टू दी क्लास, वेलकम टू दी क्लास। टैब में लिखा हुआ है आपका क्लास 10 HTML ट्यूटोरियल। तो हेडिंग आप कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं, आई होप आपको पता होगा। हेडिंग आप H1 से H6 तक दे सकते हैं। तो HTML के अंदर हेडिंग आप H1 से H6 तक दे सकते हैं। मैं देखिए इसको कॉपी कर लेता हूँ
हाँ, आप लोग लिख भी सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, कंट्रोल सी, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर दिया। मैंने H1 टैग दिया। मैं कहाँ तक हम दे सकते हैं? H6 तक दे सकते हैं ना। तो 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं 7 करूँ तो चलिए देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने H1 टैग दिया। अब मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, H2 में चेंज कर दे रहा हूँ। H2 हेडिंग दे दी, H3 हेडिंग दे दी। देखिए मैं ओपनिंग टैग में चेंज कर रहा हूँ, क्लोजिंग टैग में अपने आप चेंज हो जा रहा है। अगर आप में नहीं हो रहा है तो आप लोग कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे में शॉर्टकट की वजह से आ रहा हो। तो अगर मैं H2 को चेंज करूँगा तो क्लोजिंग टैग में भी H2 हो गया। फिर मैंने H3 हेडिंग दी, H4 है हेडिंग दे दिया मैंने, फिर क्लोज भी हो गया वो। H5 दे दिया और H6 दे दिया। H7 हम नहीं देते हैं। HTML जानता ही नहीं है कि H7 क्या होता है। तो हम हेडिंग कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं? H1 से लेकर H6 तक दे सकते हैं। तो हमने H1 से लेकर H6 तक हेडिंग दे दी। आप वेलकम टू दी क्लास की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं वेलकम टू दी हाउस, वेलकम टू दी लॉन, वेलकम टू दी फील्ड, वेलकम टू दी, कुछ भी आप मतलब जो भी लिखना चाहते हैं भाई। आप यहाँ पे H5 हेडिंग में देना चाहते हैं कि हेलो, तो आप हेलो दे दीजिए। यहाँ पे H6 में देना चाहते हैं, कुछ भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आप देना चाहते हैं हेलो वर्ड, आप हेलो वर्ड दे दीजिए। तो ये आपने एक HTML का पेज बना दिया। अब देखिए अपने पेज पे जाइए। आपने अपने HTML पेज पे गए, इसको रिफ्रेश करिए, यहाँ से रिफ्रेश करिए। ये देखिए H1 से लेके H6 तक हेडिंग आ गई। H1 वाली ज़्यादा बड़ी है, H2 उससे छोटी है, H3 उससे छोटी है, फिर इस तरीके से है। H3 वाले में मैंने वेलकम टू दी लॉन लिखा था तो वेलकम टू दी लॉन आ गया। अगर मैं यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ वेलकम टू दी लॉन की जगह लेट्स गो और सेव किया कंट्रोल एस से, देखिए मैं अपने वेब पेज पे गया और उसको रिफ्रेश किया, देखिए लेट्स गो आ गया। तो आप जो भी यहाँ पे कोड लिखेंगे वो आपके वेब पेज पे हो जाएगा। ये आपने H1 हेडिंग टैग्स देखी, हेडिंग्स टैग्स H1 से लेके H6 तक होता है। अब अगर आप एक इमेज डालना चाहते हैं स्टूडेंट्स इसमें, तो इमेज टैग होता है, मैं बता देता हूँ, IMG इक्वल्स टू और फिर इन्वर्टेड कॉमा, ये होता है हमारा IMG टैग। इमेज टैग, इमेज टैग एक एम्प्टी टैग होता है, इसको हम क्लोज नहीं करते हैं। इस टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं। एंगल ब्रैकेट ओपन, एंगल ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर हम केवल लिखते हैं IMG स्पेस फिर SRC फिर इक्वल्स टू और इन्वर्टेड कॉमा। इसको क्लोज नहीं करना होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। SRC के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम इमेज का पाथ डालते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आई होप कि इतना आपको पहले करिए। अगर आप यहाँ पे मुझे बॉडी लिख देनी चाहिए, वो एडिट हो गया था मेरे से। तो अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, अपने पेज का चेंज करना चाहते हैं, समवन वाज आस्किंग, तो हम बॉडी एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें होता है एक एट्रीब्यूट BG कलर। कलर की स्पेलिंग COLOR होती है कोड के अंदर। तो आप एक एट्रीब्यूट दे दीजिए इसमें भाई
बीजी कलर। बीजी कलर के बाद आप इक्वल्स टू लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। लाइक आप देना चाहते हैं ब्राउन कलर। कलर के कोड भी होते हैं, आप सिंपली ब्राउन कलर दीजिए, रेड कलर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो आपने क्या किया, आपने बॉडी टैग के अंदर गए, बॉडी टैग के अंदर जहाँ बॉडी है बॉडी टैग के अंदर क्लिक किया, स्पेस लगाया, एक एट्रीब्यूट दिया बीजी कलर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपने लिखा ग्रीन और सेव कर दिया कंट्रोल एस से। जाइए अपने सेम वेब पेज पे, रिफ्रेश करिए इसको, ये देखिए ग्रीन कलर का आ गया। आप अपना कलर चेंज करना चाहते हैं, कोड पे वापस जाइए, ग्रीन कलर से आप ब्राउन कलर में जाना चाहते हैं तो आप ब्राउन कलर दे दीजिए, कंट्रोल एस सेव करिए, फिर से आप अपने वेब पेज पे जाइए, रिफ्रेश करिए, ये ब्राउन इस कलर में आ गया। सो फॉर टुडे अप टू हियर ओनली, and I'm closing it.